How to Tell Wild Animals, written by Carolyn Wells, is a humorous yet meaningful poem that presents various wild animals in a playful manner. Instead of giving factual scientific details, the poet uses funny, exaggerated situations to explain how one might identify dangerous animals in the jungle. The poem begins by highlighting the Asian lion, known for its terrifying roar. The poet jokingly says that if you are walking inside a jungle, the poet begins by highlighting the Asian lion known for its terrifying roar. The poet jokingly says that if you are walking in the jungle and suddenly a fearsome creature jumps at you, roaring loudly, and you die of fright, then you will know that it was probably the Asian lion. This humorous exaggeration sets the tone of the entire poem. The poet's aim is to entertain readers while also giving them interesting characteristics of wild animals. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कैरोलिन वेल्स द्वारा लिखी गई एक हास्यपूर्ण लेकिन सार्थक कविता है जिसमें कवियत्री जंगल के जंगली जानवरों को मजाकिया अंदाज में प्रस्तुत करती है। वैज्ञानिक तथ्यों के बजाय कवियत्री बढ़ा चढ़ाकर कही गई मज़ेदार घटनाओं के माध्यम से बताती है कि जंगल में खतरनाक जानवरों की पहचान कैसे की जा सकती है। कविता की शुरुआत एशियाई शेर से होती है जो अपनी डरावनी दहाड़ के लिए प्रसिद्ध है। कवियत्री मजाक में कहती है कि यदि आप जंगल में चल रहे हो तो अचानक कोई भयानक प्राणी आप पर झपट पड़े और जोर से दहाड़े और आप डर के मारे मर जाएं तो समझ जाइए कि वह एशियाई शेर है। यह हास्यपूर्ण अतिशयोक्ति पूरी कविता पर स्वर निर्धारित करती है। कवित्री का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन के साथ साथ जंगली जानवरों को रोचक गुण बताना। अब बताओ एशियाई शेर की क्या पहचान है? और उसके लंबे लंबे दांत रहते हैं। ये तो बताए। मैंने क्या बोला है? वह विशाल होता है और जोर से दांत। मैंने बोला बस वही बताना। फिर मैं उसके बारे में बता रहा हूँ अगले जानवर के बारे में। जो मैं बोलूँ वही बताना है, मन से कुछ भी नहीं बताना। The poet then moves to the Bengal tiger, another majestic and fearsome creature. She describes the tiger as a beast with a bright yellow-colored body marked with black stripes. The tiger is elegant yet dangerous. According to the poet, if you see an animal with glorious black stripes all over its golden coat, and before you realize anything, it starts eating you, then congratulations, you have just met a Bengal tiger. This humorous description again shows the poet's playful tone. Instead of warning readers, she presents a dangerous situation as if it were an amusing way of identifying the tiger. The exaggeration emphasizes the tiger's deadly nature but wrapped in a light-hearted style. इसके बाद कवियत्री बंगाल टाइगर का वर्णन करती है जो एक शानदार और खतरनाक जीव है। वह बताती है कि इसका शरीर चमकीले पीले रंग का होता है जिस पर काली धारियां बनी होती हैं। टाइगर सुंदर भी है और घातक भी। कवियत्री के अनुसार यदि आप ऐसे जानवर को देखें जिसके सुनहरे शरीर पर शानदार काली धारियां हों और इससे पहले कि आप कुछ समझे वह आपको खाना शुरू कर दे तो बधाई हो, आप बंगाल टाइगर से मिल चुके हैं। यह मजाकिया वर्णन कवियत्री के चंचल अंदाज को फिर दर्शाता है। चेतावनी देने की बजाय वह खतरनाक स्थिति को एक मनोरंजक पहचान परीक्षण के रूप में पेश करती है। यह अतिशयोक्ति टाइगर की घातक प्रकृति को हल्के फुल्के अंदाज में दिखाती है। बता बंगाल टाइगर की क्या पहचान है? वो पीले रंग का होता है, उस पर काली धारियां होती है। ठीक है, तो क्या करना है? जो मैं बोलूँ बस वही बात मेरे को दोबारा बोलते हैं। एनी डाउट? गौर से सुन लो दोबारा अगले जंगली जानवर के बारे में। नेक्स्ट द poet present the leopard, a fierce and fast and wild animal. She humorously explained that the leopard will leap once you the moment he sees you. Unlike the tiger, who might take a second to attack, the leopard is quick and immediate. The poet warns that once the leopard jumps, he will continue eating you again and again.
The repeated phrase "do it again" is intended to create humor through exaggeration. This depiction highlights the speed and intensity of the leopard's attack. The poet uses repetition to show that the leopard is relentless and unstoppable once he begins his assault. But she conveys this seriousness in a playful, comic tone and makes learning enjoyable. इसके बाद कवियत्री तेंदुए का परिचय देती है जो तेज और अत्यंत खतरनाक जंगली जानवर है। वह मजाक में बताती है कि तेंदुआ आपको देखते ही झपट पड़ता है। टाइगर जहां एक पल सोचता है वही तेंदुआ तुरंत हमला करता है। कवियत्री चेतावनी देती है कि तेंदुआ एक बार कूद पड़ा तो वह बार बार आपको खाता है रहेगा। डू इट अगेन का दोहराव कविता में हास्य पैदा करता है। यह वर्णन तेंदुए के हमले की गति और तीव्रता को दर्शाता है। कवित्री ने पुनरावृत्ति का प्रयोग यह दिखाने के लिए किया है कि तेंदुआ एक बार हमला शुरू कर देता रुकता नहीं है, लेकिन एक गंभीरता भी हास्य के हल्के अंदाज में प्रस्तुत की गई है। बता तेंदुए की क्या गुण है? काली मिर्च जैसे धब्बे होते हैं। मैंने ऐसा बताया? जिसकी खाल पर धब्बे होते हैं। मैंने क्या बताया वो बता। टाइगर जहाँ सोच कर हमला करता है लेपर्ड वहाँ एक तुरंत हमला कर देता है। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि भाई मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और इंग्लिश में बोल रहा हूँ। जिसको इंग्लिश समझ में आ जाए वो इंग्लिश बोलो, जिसको हिंदी आ जाए हिंदी। ऐसा कोई बाला कि तुम्हें हिंदी भी समझ में नहीं आती? 1 सेकंड पहले तो बोला। बता टाइगर क्या गुण इसका, लेपर्ड का? कान बंद है कि तुम्हारे? है फिर क्यों नहीं बता रही? बोलो। अगला जानवर के बारे में बता रहा हूँ, गौर से सुनना। द पोइट देन टर्न्स टू ए कंपैरेटिवली लेस डेंजरस एनिमल, द बेयर. She says that if you are walking in the forest and suddenly a bear hugs you tightly, do not misunderstand it as an act of affection. According to the poet, a bear's hug is actually a deadly attack. This humorous portrayal takes a potentially lethal encounter and converts it into a funny, friendly gesture. The poet intentionally blurs the line between the danger and comedy to keep the tone playful. The bear's embrace, although fatal, is described as if it were a warm greeting. This not only entertains reader but also ensures that they remember the bear's behavior easily. इसका हिंदी अर्थ है। इसके बाद कवियत्री अपेक्षाकृत कम खतरनाक जानवर भालू का वर्णन करती है। वह कहती है कि यदि आप जंगल में चल रहे हैं और अचानक कोई भालू आपको कसकर गले लगा ले तो इसे प्यार का इशारा न समझे। कवियत्री के अनुसार भालू का हग वास्तव में हमला होता है। वह मजाकिया प्रस्तुति एक खतरनाक स्थिति में को एक दोस्ताना क्रिया की तरह दिखाती है। कवियत्री जानबूझकर खतरे और हास्य की रेखा को मिटा देती है ताकि कविता का स्वर हल्का फुल्का बना रहे। भालू की एक घातक झपकी एक गर्मजोशी भरी मुलाकात जैसी प्रस्तुत की जाती है जिससे पाठक मनोरंजन भी पाते हैं और भालू की पहचान भी आसानी से रखते हैं। अब देखते हैं, मूविंग अहेड द पोइट ह्यूमरसली डिस्क्राइब द हाइना। अगले जानवर हाइना के बारे में बता रहा हूँ, ढंग से कान खोल के सुनना। हाइना यानी लकड़बग्गा। शी मेंशन दैट she can identify a hyena by its special smile. A hyena is known for its airy, frightening laughter-like sound. The poet exaggerates these characteristics and says that if you see an animal smiling wildly at you, it must be a hyena. Again, the poet's tone is humorous rather than scientific. The purpose is to familiarize readers with the qualities of the hyena through something memorable and funny. By turning the hyena's terrifying laugh into a comical smile, the poet makes the learning light and enjoyable. आगे बढ़ते हुए कवियत्री लकड़बग्गे का हास्यपूर्ण वर्णन करती है। वह बताती है कि लकड़बग्गे को उसकी विशेष मुस्कान से पहचाना जा सकता है। वास्तव में लकड़बग्गा अजीब डरावनी हंसी जैसी आवाज़ निकालने के लिए प्रसिद्ध है। कवियत्री इस गुण को अतिशयोक्ति में बदलकर कहती है कि यदि कोई जानवर आपको चौड़ी मुस्कान से देखे तो समझिए वह लकड़बग्गा है। वह यहाँ भी कवियत्री वैज्ञानिक तथ्य नहीं बल्कि हास्य का सहारा लेती है ताकि पाठक आसानी से उसके गुण याद रख सके। डरावनी हंसी को मज़ेदार मुस्कान में बदलकर यह सीखने को सरल रोचक बना देती है। खड़ी
Finally, the poet introduces the crocodile. She amusingly says that if you see a huge reptile shedding tears while eating its prey, it is surely a crocodile. The idea is based on the common phrase crocodile tears, which refers to fake tears. Crocodiles do produce tears, but not out of sorrow. They do so due to biological reasons while eating. The poet creatively uses this fact to produce humor, saying that even while killing and eating someone, the crocodile pretends to cry. This mockery reinforces the poem's comedic nature while teaching something meaningful. अंत में कविता मगरमच्छ का उल्लेख करती है। वह हास्य में, मगरमच्छ के बारे में बता रहा हूँ, गौर सुनना। अंत में कवित्री मगरमच्छ का उल्लेख करती है। वह हास्य में कहती है कि यदि कोई विशाल सरीसृप आपको रोते हुए दिखाई दे जबकि वह अपना शिकार खा रहा हो, तो वह निश्चित ही मगरमच्छ है। यह विचार मगरमच्छ के आंसू वाली कहावत पर आधारित है, जो दिखावटी आंसुओं को दर्शाती है। मगरमच्छ वास्तव में रोते हैं, लेकिन दुख से नहीं, जैविक कारणों से भोजन करते समय उनके आंसू निकलते हैं। कवित्री इस तथ्य को मजाकिया उपयोग करती है, मानो मगरमच्छ किसी को खाते समय रोने का नाटक कर रहा हो। यह व्यंग्य कविता की हास्यपूर्ण प्रकृति को मजबूत कर देती है, जिसका उपयोग जानकारी भी प्रदान करना है। बताओ कि ये जो मगरमच्छ क्या गुण, बताओ मगरमच्छ का, बताओ मगरमच्छ का क्या गुण है? सर वो मतलब कि शिकार को खाता है तब वो झूठे आंसू आता है। भाई मगरमच्छ का शरीर ऐसा बना हुआ है कि वो किसी भी शिकार को खाता है ना तो आंसू निकलते हैं। इसका मतलब तुम ये मत